Some time back, I asked myself a question. कुछ समय पहले मैंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा Malti, are you a Christian? कि मालती क्या तू मसीह है? Why do you call yourself a Christian? तू अपने आप को मसीह क्यों कहलाती है? Same question I want to ask you और today. वही सेम क्वेश्चन मैं आप सबसे भी पूछना चाहती हूँ. Please tell me. आप बताएं मुझे. Tell me some of the answers. कोई बताना चाहेगा कुछ आंसर कि why do you call yourself a Christian? जल्दी जल्दी बताइए. Is it that we are born in a Christian family? क्या ये है कि हम एक मसीह परिवार में जन्मे हैं तो क्रिश्चियन हैं? Is it that our name is in the church register? क्या हमारा नाम जो चर्च रजिस्टर में इसलिए है? Is it that we give tithe and offering to क्या our हम टाइथ church? ऑफरिंग देते हैं चर्च में इसलिए हम क्रिश्चियन हैं? Or is it that we go every Sunday to the church? और क्या हम हर संडे कलीसिया जाते हैं इसलिए हैं? What is the answer? क्या आंसर हो सकता है? Okay. Very good. Yes, yes, yes. Okay. You know, when we go back to the Bible, जब वचन पे चलते हैं, the first Christians पहले जो मसीह लोग थे, never called themselves Christian. उन्होंने अपने आप को कभी मसीह नहीं बुलाया था. Others called them Christians. दूसरे लोग अपने आप को मसीह कहते थे. See those verses on the screen. Acts 11:26. What does it say? Acts 11 और 26 क्या कहता है? The disciples were called Christians जो डिसाइपल्स थे यीशु मसीह के वो मसीह कहलाए जाते थे. for the first time at Antioch, सबसे पहली बार एंटियोक जो जगह थी वहां पे कहलाए गए थे. Antiochia That was named as Antiochia in Hindi. में कहते थे. Others called them Christians. और दूसरे को मसीह कहलाते थे. Why? किस लिए? Yes, क्योंकि वो yes, मसीह yes. की You तरह have थे. hit the nail. हथौड़ा मारा है आपने. Very good. Because after Jesus went back to heaven, जब यीशु मसीह हेवन चले गए थे, disciples started to live out the message of Christ. तो उनके चेलों ने बाहर जाना शुरू कर दिया वचन देने के लिए. First, they lived out the teachings of the Lord in their life, पहले अपनी जिंदगी में उन्होंने वो जो सुना वो करा, and later, side by side, they started giving the message to others, और अपने के बाहर दूसरों को भी बांटना शुरू कर दिया. making more disciples, और डिसाइपल्स और चेले बनाने के लिए, bringing more people into the kingdom. और लोगों को प्रभु की किंगडम में लाने के लिए. And in Acts of Apostles, if we read, we find और एक्ट्स में हम देखेंगे जब पढ़ते हैं, people were amazed at their courage. लोग हैरान होते थे उनका करेज देख के, वो कितने बहुसाई थे. And another verse, Acts 4:13 says, और एक्ट्स 4:13 कहता है, people were astonished at their courage. और वो बड़े एस्टोनिश हो चुके थे उन सबको देख के. Why? किस लिए? Because people knew they are unschooled, ordinary men. क्योंकि वो जानते थे वो लोग थे जो किसी स्कूल में नहीं गए थे और आम इंसान थे. They were not scholars. वो कोई बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं, स्कॉलर्स नहीं थे, They were not learned men. और बहुत बड़ी लर्नड मैन नहीं थे जिनको सब कुछ आता है. They were fishermen and taxmen. वो सब टैक्समैन थे या मछली पकड़ने वाले थे. What are they doing? वो क्या कर रहे हैं? With so much power and so much courage. और किस सामर्थ्य के साथ क्या कर रहे हैं ये? And then they found out the उनको पता चला, secret of their power. सीक्रेट का पता चला उनकी सामर्थ्य का क्या सीक्रेट है. And the secret was, और वो सामर्थ्य का सीक्रेट था, be part of verse 13, 13 में कहते हैं, they had been with Jesus. जो वो यीशु के साथ रहे थे, They had been with वो Jesus. यीशु मसीह के साथ रहे थे. The quality of Jesus were rubbed onto them. और जो यीशु मसीह की क्वालिटी थी उनकी जिंदगी में वो रब हुई थी. They imbibed his qualities. और उन्होंने वो लिया क्वालिटीज को अपनी जिंदगी They में, were following in his footsteps. और उसके पीछे चल रहे थे. वो They have observed the Lord closely. उन्होंने देखा यीशु मसीह को बहुत नजदीकी से. For 3.5 years, they were with Jesus. 3.5 साल तक उसके साथ थे वो. They observed him day and night. उन्होंने ऑब्जर्व करा, दिन रात उसको देखते गए.
first hand they learned from the master. पहली चीज उन्होंने अपने मास्टर से सीखी है That transformed their life. और उस चीज ने उनकी जिंदगी बदल दी। These ordinary, वो आम unschooled लोग men किसी स्कूल में नहीं गए थे, from the lower strata of society. बिल्कुल नीचे प्रांति के लोग थे वो। The Acts of Apostles says और अब एक्ट्स कहता है they were turning the city upside और down वो सिटीज को ऊपर नीचे कर रहे थे by their preaching. अपनी प्रचार से। This is Christ likeness. ये है यीशु मसीह की तरह होना। These are the true Christians. ये असली मसीह लोग थे, Christ likeness. यीशु मसीह की तरह। When we live with him, जब हम रहते हैं उसके साथ, we imbibe his qualities हम उसकी क्वालिटीज को अपनी जिंदगी में ले लेते and हैं we become like him. और उसकी तरह हम बन जाते हैं। We need not say we are Christians. हम ऐसे नहीं कह सकते हम मसीह हैं, Others look at us दूसरे लोग हम पे देखते हैं and they say they are Christians. और वो कहते हैं कि ये मसीह लोग हैं, They resemble the master. ये बिल्कुल उस अपने मास्टर की तरह हैं। We can see the image of the master. हम in देख them. सकते हैं उसकी इमेज इनके अंदर। This is what God wants each one of us today. इसलिए खुदा वो सारी चीजें आज हमें बताना चाहता है। You know, discipleship is a full-time job. डिसाइपलशिप जो है पूरे समय की जॉब है ये। It is not 9 to 5 job. ये 9 से 5 की जॉब नहीं है ये Come at 9, report for duty, off duty कि at सुबह 5. आए रिपोर्ट करें और जाएं। Remove your coat of discipleship and hang it अपना कोट somewhere. डिसाइपलशिप का जो पहनते हैं आप रोज सुबह उतारें, रख दें और Now बैठ you जाएं। are on your own. अब आप अपनी तरफ बैठ जाएं जैसे भी है। You are not disciple of अब Christ. आप मसीह नहीं हैं। Whomsoever Jesus calls, जिस किसी को भी यीशु ने बुलाया he never sends them back. उसने उसको वापस नहीं भेजा It is a full-time job. और पूरी समय की जॉब थी वो It is a lifetime और पूरी commitment. लाइफ की कमिटमेंट थी वो It is a lifetime allegiance to वो the एक Lord. पूरा लाइफ टाइम एलिजेंस उसका है कि वो कभी छोड़ेंगे नहीं उसे। A Christian is never off duty. एक मसीह इंसान है, वो कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता है। It's not part-time job. ये कोई पार्ट टाइम जॉब भी नहीं है, It is 24/7 duty. ये 24 घंटे और 7 दिन का काम है। Lord wants such disciples खुदा इस तरह के चेले ढूंढता है who are ready to live for him और जो तैयार है उसके लिए जीने के लिए and die for him. और मरने के लिए। The journey into the discipleship, और जो जर्नी है, जो रास्ता है मसीह बनने का, चेले बनने का, that begins at our new birth. वो एक नए जन्म पे बिगिन होता है। The journey to follow Christ, जो रास्ता शुरू होता है उसको पीछे चलने का, it has a beginning. उसका एक शुरुआत है That beginning is और वो शुरुआत जो है when we accept Jesus जब हम उसको ले लेते हैं, उसको मान लेते हैं, as our Lord and Savior. उसको अपना सेवियर कहते हैं। जब हम Suppose we have to climb a ladder. ऐसा हो सकता है कि अगर हमें कोई सीढ़ी चढ़ना हो, We put our feet on the first step. और अपना पैर हम पहली सीढ़ी पे रखते हैं। This is the beginning of the journey of Christian life. ये शुरुआत है मसीह जीवन की, जब आप पहला पैर सीढ़ी पे रखते हैं। Our experience of salvation, और हमारा जो एक्सपीरियंस है सैल्वेशन का, जो उसका, which is called by various names. और जो बहुत सारे दूसरे नामों से भी जाना जाता है, It is also called new birth. उसको कहते हैं एक नया जन्म भी कहते हैं उसको, It is also called repentance and forgiveness. और उसको कहते हैं माफी मांगना और खुदा से, Accepting Jesus as our personal savior. उसको अपना पर्सनल उद्धारकर्ता मानना। It's also called getting the eternal life. उसका मतलब ये भी है कि इटर्नल लाइफ को पाना। All these things are one and the same thing. और ये सारी चीजें एक ही हैं। Being born again दोबारा से जन्म लेना, into God's family. खुदा की फैमिली में आना, This is the beginning of our Christian ये journey. शुरुआत है हमारी मसीह जिंदगी की। The basic foundational requirement और जो एक रिक्वायरमेंट है, जो सबसे बेसिक है, आम जो चीज है, to be a disciple of Christ. उसका चेला बनने की, If we have not taken this step, अगर हमने ये वाला स्टेप नहीं लिया, we will not be able to progress into the journey of हम Christianity. आगे नहीं बढ़ पाएंगे। When we take this first step, जब हम पहला स्टेप लेते हैं, we are standing on the first step of the हम staircase. खड़े हैं उस पहली सीढ़ी पर।
Lord wants us to climb the ladder step by step. और खुदा चाहता है हम ऊपर बढ़ते जाएं एक एक पैर रख के. This journey leads us into Christ likeness. और ये रास्ता जहां जाता है वो आपको यीशु मसीह की तरह बनाता है. Why God want to make us like Christ? क्यों खुदा हमें उसकी तरह बनाएगा? Wait upon the Lord. उस पे वेट करें. Lord, I know you will give me the best. खुदा मैं जानता हूं कि तू मुझे सबसे अच्छा देगा. I am waiting here. मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ. Please tell me. Many times we run ahead of God. बहुत समय हम आगे निकल जाते हैं खुदा के. We want Jesus to follow us. हम चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे पीछे चले. And Jesus from behind is telling, come back और my यीशु मसीह child. पीछे बुलाते हैं कि पीछे आ जा. I am here. मैं यहाँ हूँ. Where are you running? तू कहाँ आगे जा रहा है? Come back. पीछे आ. We shouldn't do that. हमें ऐसा नहीं करना है. Disciple follows the master, no? डिसाइपल चेले जो मास्टर्स को फॉलो करते हैं. Sometimes we want to do other way around. लेकिन Jesus हम to follow us. दूसरी तरह से करना चाहते हैं कि यीशु मसीह तू मेरे पीछे चल. 3 weeks back, I was traveling within Canada 3 हफ्ते पहले मैं कनाडा ऐसे बीच में घूम रही थी. in the train. ट्रेन में Lord started giving me this message. खुदा ने मुझे वचन देना शुरू करा. I didn't know for whom it was. मुझे नहीं पता ये किसके लिए है. I didn't have the papers also to write. मेरे पास पेपर भी नहीं थे लिखने के लिए. So I wrote at the back of my boarding pass. तो मैंने अपने बोर्डिंग पास के पीछे लिखना शुरू कर दिया. Then Priyank gave me few papers और फिर प्रियंक out ने of मुझे pity. कुछ पेपर्स दिए. I didn't know for whom this message मुझे नहीं पता was. किसके लिए है ये. Now I know it was for me मैं जानती हूँ ये मेरे लिए था and it was for you. और ये आपके लिए था. We finish our thing by one last verse taken from the 1 Corinthians. Paul says we have the mind of Christ. हम खत्म करेंगे इस वर्ष के साथ. पॉल ने कहा है कि हमारे पास जो सोच है यीशु मसीह की Paul सोच है. said we have the mind of Christ. हमारे पास है वो सोच. Can I say that? क्या हम कह सकते हैं? How do I score myself in Christ likeness? किस तरह से मैं अपने आप को यीशु मसीह में बदल सकता हूँ? Do I have the thoughts, emotions and will that submits to the Lord? क्या मेरे पास वो विचार, वो विल और इमोशंस हैं जो खुदा के नीचे आ सकते हैं? Do I think as Jesus thinks? क्या मैं सोच सकता हूँ जैसे यीशु सोचता था? Do I cry at the things Jesus cried? क्या मैं रो सकता हूँ चीजों पे जिस पे यीशु मसीह रोते थे? Do I get angry and take the stands at the things God gets angry? और मैं उन चीजों पे खड़ा होता हूँ और गुस्सा होता हूँ जिस पे खुदा को गुस्सा चढ़ता है? Do I follow his known will in the scripture? क्या मैं फॉलो करता हूँ उसकी नोन विल जो उसने लिखी है वचन में? Do I wait क्या मैं रुकता हूँ? for to know his will in everyday life? रुकता हूँ उसकी विल जानने के लिए अपनी पूरी रोज की जिंदगी में? Our pastor back home in Delhi used to say, हमारा पास्टर जो दिल्ली में कहते हैं, sermon is not over सरमन तब तक पूरा नहीं होता till you say I will do something about it. जब तक आप नहीं कहते कि मैं इसके लिए कुछ करने के लिए तैयार हूँ. Sermon is not over सरमन पूरा नहीं होता till तब तक. each one of us says, yes, I will do something तब about तक पूरा नहीं होता जब तक कहते हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ. it. Jesus asked for a response. खुदा एक रिस्पांस मांगता है हमसे. Let's close our eyes. आइए हम आंखें बंद करें. We are sitting